हेलो جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں علی خان بات کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں جی تو بولیے۔ آپ نے ایک آپ کی ویڈیو سن رہا تھا، کوئی عبدالحکیم ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں، یا ان کا کوئی نمبر دے دے۔ تو میں عبدالحکیم ہی بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں؟ ہاں ہاں، وہی جو صوفہ جلال الدین کو آپ نے پھنسایا ہے ہاں جی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام اہل سنت ہیں اور کسی کو امام اہل سنت نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا، یہ آپ ذرا واضح کر دیں۔ کوئی حدیث یا کسی ائمہ کا قول یا کہیں سے بھی ثابت کر دیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم امام اہل سنت ہیں، اور کسی کو امام اہل سنت کہو گے تو وہ بد مذہبیت یا گمراہیت کی طرف چلے جاؤ گے۔ ہم نے بد مذہبیت اور گمراہی نہیں کہا ہے۔ تو اہل حضور کے علاوہ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سوال کلیئر ہو جائے۔ اہل سنت سے مراد کیا ہے اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ بولے؟ ہاں اب بولیے۔ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو امام اہل سنت کہا ہے، آج کے 1450 سال کے اندر کسی نے کہا ہے جو آپ نے کہا پہلے؟ اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا قیاس آپ کے لیے حجت نہیں ہے، نہ ہی آپ کا قیاس ہمارے لیے حجت۔ ہم نے قیاس نہیں بتایا، ہم نے آپ سے پوچھا جو اہل سنت نہیں، آپ نے کہا ہے، پوچھنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں اہل نہیں، آپ پوچھ نہیں رہے، آپ حکم لگا چکے ہیں اور آپ نے پورا بحث اسی پر کیا ہوا ہے۔ ارے تو دوسری کی بات سنیں گے، صرف اپنی کہیں گے؟ کیا دوسرے کی سنیں؟ اہل سنت والجماعت سے مراد کون لوگ؟ اہل سنت و جماعت سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جی، جو اہل سنت جیسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی نہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، ہم اپنا قیاس ہم نہیں پیش کریں گے۔ بولیے۔ ہم جو بات کریں گے وہ حدیث کی روشنی میں یا کسی ائمہ کا قول پیش کریں گے۔ چلیے ٹھیک ہے نا؟ ہم دیوبندی تھوڑی ہیں کہ اپنا قیاس چلائیں گے۔ ارے بھائی ہاں، آپ لوگ تو قبر پر جو اذان دیتے ہو کس کے قیاس سے کر رہے ہو؟ قبر پر اذان؟ قبر پر اذان پر بات کرو گے یا اس پر بات کرو گے؟ نہیں تو آپ بھی قیاس نہیں ہمیں پوچھ رہے۔ قبر پر اذان پر بھی بات کر لیں گے، پہلے آپ نے جو امام اہل سنت کا وہ کس کے قیاس سے کر رہے ہو؟ وہ بھی میں بات کر لوں گا اس پہ، لیکن امام اہل سنت۔ ہلو، ہاں کر لیتا ہوں، ذرا 2 منٹ رکو، میں دیکھ تو بات کرتا ہوں۔ کاٹنا نہیں فون۔ ہاں بولو، کہیں بھاگ گئے تھے؟ نہیں، بھاگ کہاں گیا تھا، میں تو ہلو ہلو کر رہا تھا، فون چالو تھا، آپ کا آواز ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تو بول رہا تھا، کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بتائیے، بتائیے نہیں، بتانے کا کام آپ کا ہے یار۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام اہل سنت ہے، آج کے 1450 سال کے اندر کس نے کہا؟ احمد رضا امام اہل سنت ہے نا؟ میں پوچھ رہا ہوں، امام اہل سنت تو بہت سارے۔ جی، اب کس نے کہا؟ آپ کس نے کہا؟ اگر اس میں منع، یہ احمد رضا کو امام اہل سنت کہتا ہے، بالکل، اور نبی کریم امام اعظم کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت تو چھوڑیے، اہل سنت ہر وہ شخص ہے، اور سنو یار، اپنے آپ کو سنو میں بتا رہا ہوں، اہل سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، صحابہ کرام کو مانے اور ان کے قول و فعل پر عمل کرے، وہ اہل سنت ہے، اور اس میں سے جو رہنمائی کرنے والا ہو وہ امام ہے، تو اہل سنت کا امام ہو گیا۔ رضا خان نے ایک نیا دین چلایا ہے، نیا دین تمہاری ضروریت میں محمد رضا خان ہے، اسے بریانی کھانا ہے مرنے کے بعد، اور اس کے بعد انڈا کھانا ہے، اور ہفتے بھر کا جو سامان ہے اس کے اندر کرنا ہے۔ تو جو نیا دین چلایا ہے امام احمد رضا خان صاحب ہے، اور جو دین محمدی ہے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت، اہل سنت سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اول جماعت سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ ان لوگوں کو بغض ہے حضور صحابہ سے، کیونکہ احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ جو میرے دین پر مضبوطی سے قائم رکھنا، میرے مذہب اور دین کو مضبوطی سے قائم رکھنا، جو میری کتابوں سے واضح ہے، بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا دیوبندیت کو میں چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا دیوبندیت کو، یہ جو مولوی بات کر رہا ہے اس کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا دین بنایا ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ دوسری بات، پوری دنیا دیوبندیت کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا کوئی ایک بھی عمل شریعت کے خلاف ثابت کر لے جائے تو میں مان جاؤں گا کہ نیا دین ہے۔
जब एक भी अमल में पूछेंगे तो एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दो, रजा की उम्मती है। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है वहाँ से कुछ? हाँ, क्या करें ऐसा? हाँ, आवाज गई खबर है, बोलिए। हाँ, तो इमाम अहले सुन्नत जो है, किसने कहा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को? सुन्नत किसका तरीका है? सुन्नत माने क्या होता है? अरे यार, क्या होता है क्या नहीं होता, किसी ने कहा या नहीं होता, फिर बाद में हम अरे मैं पूछ रहा हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से मुराद आप किसको लेते हैं? किसका तरीका? अब सुनिए, बताता हूँ। सुन्नत माने तरीका होता है। एक मिनट रुक जाइए, पूरी बात हो जाने दो। अरे यार, आप कयास करके आपको इख्तियार नहीं है ना, हमें इख्तियार है। दूसरे की बात सुनोगे। सुन्नत माने किसका सुन्नत का तरीका? आपका किसी हदीस पर आपको कयास करने का हक नहीं है ना, हमें हक है। हुजूर के अलावा किसी का तरीका और चाहिए आपको? मैं पूछ रहा हूँ कि इमाम अहले सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपने ये दावा किया। अगर हुजूर नहीं है तो कौन है? साबित कीजिए, आज के 1450 साल के अंदर किसने इमाम अहले सुन्नत कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं तो अगर अहले सुन्नत हुजूर नहीं, अरे यार, आप साबित कीजिए, आपका दावा है। मैं पूछ रहा हूँ, साबित तो ही है। अहले सुन्नत वल जमात से मुराद कौन होगा? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह असातुल लमात में अहले सुन्नत की तारीफ करते हैं, और गुनियतुत तालिबीन में सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तारीफ करते हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करे और चारों खुलफा को, इस जमात को जो माने, समझ रहे हो, वो अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे, और जमात से मुराद जो सहाबे कराम जो चारों खुलफा हैं वो मुराद है, और इन दोनों की पैरवी करने वाला अहले सुन्नत व जमात है। अब आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखिए हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम किताबों के हवाले से बात कर रहे हैं। आपका दावा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अहले सुन्नत हैं, आप वो पेश कीजिए। तो सहाबा इकराम किसका तरीका अख्तियार करेंगे? अरे यार, किसी ने कहा है आज से 1450 साल के मैंने जो आप सवाल से पूछा हूँ, आपने दावा किया है कि इमाम अहले सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यार, दूसरे की बात जब सुनोगे तब तो जवाब देगा आदमी। सुन तो रहा हूं। तुम अपनी बात कह रहे हो, दूसरे की बात सुनते हो, कैसे जवाब देगा ये बताओ। बोलो बोलो बोलो। जब इमाम की पैरवी मुक्तदी करता है, इमाम जैसे कहता है, पूरी बात सुन लेना तब बात भी ठीक है, सुनाओ। तो करता ये सहाबा इकराम सुन्नत माने तरीका है। सहाबा इकराम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार किया, तो इमाम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भी उन्हीं का तरीका तो सहाबा इकराम ने इख्तियार किया है। तो जिसका तरीका इख्तियार किया जाएगा तो इमाम तो ही कहलाएगा। ले बाबू, ये बताइए आप। बोल चुके। हाँ, जिसका तरीका आप क्या करेंगे अपना ना, हमारा क्यास नहीं, हमारा क्यास नहीं। अहले सुन्नत से मुराद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वल जमात से मुराद सहाबा कराम हुजूर के। जो सहाबा कराम, सुनिए, सहाबा कराम का कोई अमल सुन्नत नहीं है क्या? सहाबा कराम का कोई भी अमल जो है वो सुन्नत नहीं है क्या? क्यों नहीं है? तब कैसे आप सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास कर रहे हैं? तो आप यहाँ पर जो इमाम अहले सुन्नत वल जमात से मुराद, तो जमात कौन होगा? क्यों सुन्नत, जमात से भी मुराद ये है, और सुन्नत भी इनकी ली जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी सुन्नत है, और सहाबा कराम का भी अमल सुन्नत है। तो अहले सुन्नत वल जमात तो हुजूर का तरीका छोड़ के अगर सहाबा ने कोई तरीका अख्तियार किया हो तो वही सुन्नत कहलाएगी क्या? हाँ, उसके खिलाफ नहीं, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ रुक जाइए। हाँ, बोलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बास तरीका ऐसा है, अहले सुन्नत वल जमात से मुराद है हुजूर का जो तरीका सहाबा इकराम ने अख्तियार किया है उस तरीके पे हमको चलना है। बाद मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम है, जैसा आपका बोल बराज पाक था। पूरी बात सुन लीजिए। आपका बोल बराज पाक था, आप सोते थे तो वजू नहीं टूटता था। वल जमात से मुराद है हुजूर का जो तरीका सहाबा इकराम ने अख्तियार किया है वो तरीका इस उम्मत को अख्तियार करना है। समझा आपने? हो गया आपका? हाँ। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ, हुजूर ने 11 बीवी थी तो अजीब बात है यार। तुम जो बोल रहे हो आप, ये कहाँ लिखा है? तुम कितना शादी करोगे? 4 करोगे, 11 करोगे? ये कहाँ लिखा जो अभी आपने बताया? बराज पाक था तुम्हारा। अपने मर्जी से यही कहते हैं देवबंदी जो है वो किताब और सुन्नत से बात नहीं करता, वैसा है, अपनी मर्जी से बात करता है। नहीं, ये बताओ कि तुम सोते हो तो वजू टूटेगा कि नहीं टूटेगा? सुनिए,
तुम अभी आपने, अरे यार आप अपना कयास में, अब देखिए वजू टूटेगा और नहीं टूटेगा, आपका दावा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामे अहले सुन्नत है। किसी किताब में किसी मुहद्दिस ने किसी, सुन लीजिए मेरी भी बात सुन लीजिए ना, पहले इसका जवाब दे दो तब आगे चलो। तुम सोओगे तुम्हारा वजू टूटेगा कि नहीं? हाँ टूटेगा बिल्कुल। तो हुजूर का नहीं टूटता था? हाँ तो नहीं टूटता तो क्या हुआ? नहीं टूट क्या हुआ? नहीं, हाँ तो फिर हुजूर का वो तरीका, हाँ। जो तरीका सहाबा इकराम ने अख्तियार किया है उस तरीके पर उम्मत को चलना है। बात मामले में हुजूर का स्पेशलाइजेशन है, हुजूर का बोल बराज पाक था, तुम्हारा भी पाक है। अब सुनिए हुजूर, हाँ सुनिए, हुजूर ने 9 बीवियां की, 11 बीवियां शादी की। सुनिए अब देखो अपना सुना रहे हो, मेरा सुन ही नहीं रहे। सुना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी जो ऐसी हैं सुन्नतें जिस पर क्या हर सुन्नत पर अमल करना वाजिब है? हमने तो वही पूछा, मैं पूछ रहा हूँ हर सुन्नत पर अमल करना वाजिब है। दूसरी बात, सहाबे कराम ने किसी काम को, किसी नए फेल को इजाद किया हो तो क्या वो सुन्नत नहीं है? सुन्नत है ना सुन्नत। तो अब वही मैं पूछ रहा हूँ, सहाबा इकराम ने इख्तियार किया या खुलफाए राशिदीन ने इजाद किया? क्या खुलफाए राशिदीन कौन है? सहाबा कराम नहीं है। मैं पूरे, आपने पूरे सहाबा को कहा है। हाँ। मैंने कहा पूरे सहाबा में किसी ने इजाद किया हो या खुलफाए राशिदीन ने इजाद किया हो? किसी ने भी इजाद किया हो, सहाबा कराम ने सिर्फ नहीं। सुनिए मैं बता रहा हूँ। नहीं इसका दलील दे दो। क्या? कि खुलफाए राशिदीन के अलावा किसी सहाबा ने कोई नया तरीका अख्तियार इजाद किया हो, सुन्नत कहलाएगा। दलील दो इसको। सुन्नत कहलाएगा? हाँ। क्या मैं कह रहा हूँ कि हर सुन्नत तो कहलाया ही जाएगा, लेकिन हर सुन्नत पर अमल करना जरूरी थोड़ी है। मैंने तो कहा, मैं तो इस पर कायल हूँ। मैं इसीलिए कहा ना, अहले सुन्नत वल जमात, पूरी बात सुन लेना। हुजूर का वो तरीका, जो तरीका सहाबा इकराम ने अख्तियार किया है, वो तरीका इस उम्मत के लिए लाजिम है। इसलिए अहले सुन्नत, हर सुन्नत नहीं लाजिम है यार। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत जो है वाजिब नहीं है। जरा समझ वाली तो सहाबा कराम की क्या बात यहाँ पर हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामे अहले सुन्नत हैं, और आप कहाँ से कहाँ बात को ले जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। ना जवाब तो हमारे पास है। जवाब किसने आज के 1450 साल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामे अहले सुन्नत कहा? तो इमाम अहले सुन्नत कौन है बताओ? अब कौन है सवाल नहीं, आपने कहा, उसमें हुक्म लगाया है। अगर आपने ऑडियो में कहा है कि जो और किसी को इमामे अहले सुन्नत कहे उस पर आपने एतराज किया है। या तो हुजूर के अलावा कौन इमाम अहले सुन्नत है? आप पहले ये तो साबित कीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अहले सुन्नत है। अगर हुजूर को तुम इमाम अहले सुन्नत नहीं मानते हो तो अरे यार तुम मानते हो ना, किस किताब में लिखा हुआ है? अरे भाई ये बताओ फिर कौन है? अरे यार तुम मानते हो ना, कहाँ लिखा हुआ है वो मैं पूछ रहा हूँ। अब अजीब बात है। अब देखो, अगर हुजूर को तुम लोग नहीं मानते हो, तुम कह रहे हो उस पर तुम्हारे पास दलील नहीं है, पलट के सवाल करना है क्या? अगर हुजूर को तुम लोग इमाम अहले सुन्नत नहीं मानते हो तो किसको मानते हो ये बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, इमाम अहले सुन्नत तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपने खास किया हुआ अपने ऑडियो में कि सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर से तुम लोगों को आपने खास किया हुआ है। नहीं, हुजूर से तुम लोगों को बुग्ज क्यों है? देखो ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अब बुग्ज काहे के लिए है? बुग्ज क्यों? हम तो इमामुल अंबिया कह रहे हैं। देखिए, इमामुल अंबिया कहना अफजल है या इमामे अहले सुन्नत लफ्ज अफजल है? इमामुल अंबिया अफजल लफ्ज कौन सा है? इमामुल अंबिया किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया हम कहते हैं। ये लफ्ज कहना अफजल है कि इमामे अहले सुन्नत कहना अफजल है? दोनों में बताइए अफजल कौन सा है? बुग्ज तो तुमको है। नहीं, बुग्ज इमामुल अंबिया तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब कैसे तुमने हमको कहा कि हमको बुग्ज है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? तुम लोग अहमद रजा को इमाम अहले सुन्नत मानते हो, हुजूर को अहले सुन्नत मानने में तुमको क्या परेशानी है? कब्र पर अजान के बारे में बात कर लो। नहीं पहले इस पर तुम लोग तुम्हारे पास इसका जवाब ही नहीं है कि इमाम अहले सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने कहा? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले सुन्नत मानने से तुम्हारी क्या परेशानी है? मैं पूछ रहा हूँ कि किसने कहा आज के 1450 साल के अंदर इमाम अहले सुन्नत किसने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कुरान में या हदीस में या कहीं पर भी मौजूद है? सामाईन इस बात को जान लीजिए, सामाईन जानेंगे तब जब आप हदीस या कोई कौल किसी अइम्मा का पेश करेंगे। को अहले सुन्नत कहने से सामाईन ये अपना नजरिया पेश कर रहा है। ये मौलवी जो है देवबंदी है, ये देवबंदी मौलवी अपना कयास पेश कर रहा है। मैंने पहले कह दिया कि ना हमारा कयास हुज्जत है ना आपका, कोई भी इस्तदलाल, दोनों जन का ये हुज्जत नहीं है। इसमें
آپ کو کتابوں سے پیش کرنا پڑے گا کہ امام اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے کہا. چلو وہ پیش کرو. سامعین کو سنا رہے ہو؟ ہلو چلے گئے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہلو مولانا حکیم صاحب دیوبندی، آؤ اب قبر کے اذان پر بات کر لو. اب تمہاری ہو گئی ہے، کام تمہارا ہو گیا. ہلو دیکھیے خاموش ہو گیا بھائی نے، فون بھی نہیں کاٹ رہا ہے.